Hello, children, how are you? I hope that you all are doing so well and taking care of your health by staying home. Children, this is the last chapter we will have today in this video, and as we know that this is the first part, and in the beginning of the chapter we always have some certain question. So let's first see what is the chapter. So this is chapter number 16, Gopal Band Can Count Stars, from your book My English Garden. So children, as you see the title, right, the title says that there is a person who could count the stars which are found in the sky. जो stars हैं जो sky में पाए जाते हैं वो एक गोपाल बंद पर्सन है जो कि काउंट कर सकता है. सो टुडे द स्टोरी इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड गोपाल बंद. So before we start the chapter, we'll see few questions written on the screen showing two pictures. So as you can see, there are two pictures of two men. One seems to be a priest, the other seems to be a courtier. So children, the question is, have you ever heard stories or have you ever read stories of तेनाली रमन और बीरबल? कभी आपने तेनाली रमन या फिर बीरबल की कोई कहानी सुनी है? ऑफ कोर्स अकबर बीरबल की कहानियाँ तो आर शोन ऑन टेलीविज़न, उसमें दिखाई जाती हैं टेलीविज़न पे. तो क्या आपने कभी बीरबल या फिर तेनाली राम की स्टोरी सुनी है? इफ़ येस, देन ऑफ कोर्स शेयर एनी ऑफ द स्टोरीज ऑफ हिम. सो चिल्ड्रन, आई होप दैट तेनालीराम का नहीं बट आपने अकबर का नाम सुना होगा, और अकबर के नाम के साथ साथ एक बहुत ही कॉमनली एक नाम जुड़ा होता है, बीरबल. सो वी नो हु वाज बीरबल. मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं, आई होप. सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू आइडेंटिफाई देम हियर? सो हियर इन दिस पिक्चर वन इज़ तेनालीराम, the other is बीरबल. सो इसमें बीरबल कौन है, तेनालीराम कौन है? You need to identify, right? So first you need to tell that have you ever read or heard any story about बीरबल और तेनालीराम? Yes or no? क्या कभी आपने स्टोरी सुनी है? आंसर देना है हाँ या ना. अगर सुना है तो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग बोथ ऑफ देम, पता भी होगा. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट हु इज़ तेनालीराम एंड हु इज़ बीरबल. इसमें से तेनालीराम और बीरबल कौन है? अब चूँकि हम जानते हैं बीरबल बिलोंग्स टू अकबर एंड अकबर वाज अ किंग, राइट. सो अकबर के कोर्टियर में राज दरबारी जो रहते हैं उनका पहनावा क्या होता है, उनका ड्रेसअप क्या होता है. सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू गेस दैट हु इज़ तेनालीराम और अकबर. Yes, now the next question is, who is your favorite character and why? So of course, if you know about Tenali Raman or Birbal, so definitely you know their characters also very well. So you need to tell that why do you like Tenali Raman or Birbal. आपको इन दोनों में से किसका कैरेक्टर पसंद है और क्यों पसंद है? So these three questions you need to answer, and rest two questions you can skip. The reason that we don't have any class, but yes, I would ask you, if you wish, do narrate your story with the teachers, with the friends or family, so that you can improve your language, right? Now we'll see the next, that what is the chapter about. Yes, so here we go now with the chapter. So when the Nawab wants to find out how many stars are there in the sky, Gopal Band is on a mission to find the answer. Let's read on to know more. Up in the beginning of as usual we have some lines written on the top of the page. In the beginning of the chapter कुछ lines लिखी होती हैं. So basically वो lines क्या होती हैं, they are just sort of
intro about the chapter, that how is it going to start, और थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता चल जाता है. तो हमें इन लाइन्स में पता चल गया that there is a Nawab who wants to know that how many stars in the sky, and for that गोपाल बंद is asked to get to know. गोपाल बंद एक इंसान है जिसे कहा जाता है कि तुम जाकर के पता करो. सो द होल चैप्टर इज रिवॉल्विंग अराउंड गोपाल बंद, that how does he find out the answers of those questions which are asked by the Nawab. So first we'll see the all characters. So children, let me tell you, this is not a story, this is a play, right? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक तरीके का नाटक है, प्ले है, जिसमें अलग अलग किरदारों को निभाया गया है. पीपल हैव डिफरेंट रोल्स and different characters to play on in the play. So narrator एक होता है. narrator क्या होता है? जो play के बारे में बताता है कि क्या होने वाला है और क्या चल रहा है. ठीक है, अगर आपने स्कूल में देखा होगा कि छोटे छोटे रोल प्ले होते हैं, हम अपने टीचर्स के लिए, हम बच्चों के लिए, हम कोई मैसेज देने के लिए छोटे छोटे नाटक करते हैं. तो उन नाटक की भूमिकाओं को बताने के लिए, टू टेल द बैकग्राउंड ऑफ द प्ले, देयर आर नरेटर्स जो नरेट करते हैं, बताते हैं स्टोरी में क्या होने वाला है या आगे घटना में क्या घटित होगा या क्या घट रहा है. तो वो बताने वाला इंसान नरेटर होता है, राइट. देन कम्स थ्री कोर्टियर्स. अगेन थ्री कोर्टियर्स मीन्स तीन राज दरबारी हैं. राजा कृष्णा चंद्र, एक राजा कृष्णा चंद्रा है. देन नवाब हैं, टू सेंट्रीज हैं, इट मीन्स चौकीदार हैं. एंड गोपाल बंद है, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमेगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स देर आर मेन, वीमेन, चिल्ड्रन ऑफ द टाउन. और कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं और कुछ आदमी हैं जो कि उस टाउन में रहते हैं. नाउ विल स्टार्ट द प्ले. सो चिल्ड्रन, प्ले इज़ डिवाइडेड इनटू फ्यू सीन्स, राइट. तो प्ले में कुछ सीन्स होते हैं. सो वी विल हैव द फर्स्ट सीन हियर. लेट्स सी हाउ इज़ इट स्टार्टिंग. तो फर्स्ट सीन में क्या होता है, क्या सीन चल रहा है, अब हम देखेंगे. सो द कोर्ट ऑफ द नवाब इज सिटिंग सराउंडेड बाय बुक्स, मैप्स एंड ग्लोब्स. सो यहाँ पर जो सीन चल रहा है, इफ़ यू सी चिल्ड्रन हियर, एक नवाब है, नवाब के बगल में मैप रखा हुआ है और कुछ बुक्स रखी हुई हैं और उसके हाथ में ग्लोब है. यानी ही इज़ looking for some answers, or he is looking for something which making him curious. So let's see what is it. अब नरेटर बताता है, अब हमें बताता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो listen to the story of a clever young man who outwitted the Nawab of Bengal. We now go to the Nawab's court. अब जो नरेटर होता है चिल्ड्रन, वो हमें बता रहा है कि अब कैसे नाटक की शुरुआत हुई है. ठीक है, तो बताता है कि द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी ऑफ अ क्लेवर मैन हु आउटशाइंस नवाब ऑफ बंगाल. वो एक मैन है जिसका नाम है गोपाल बंद और बहुत ही क्लेवर यंग मैन है और जो कि नवाब को बहुत ही अपनी बुद्धि से मात देता है. वो बंगाल का नवाब है जो कि. सो ये बताते हुए कहता है, लेट्स मूव टू द कोर्ट नाउ. अब हम कोर्ट की तरफ चलते हैं. नाउ द सीन स्टार्ट्स. नवाब क्या कह रहा है, टेक दिस बुक्स अवे, दे आर ऑफ नो यूज़. आई कैन नॉट फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट ट्रबल मी. अब नवाब क्या कहता है, टेक ऑल दीज बुक्स अवे, they are useless because I'm not able to get any of the answers of my curiosity which are troubling me. वो कहता है मुझे ये क्वेश्चंस जो मुझे परेशान कर रहे हैं, ये बुक्स, मैप्स, ये सब यूज़लेस हैं, ये किसी काम के नहीं हैं, इन्हें मुझसे दूर ले जाओ. Now two courtiers come and take the books away. अब दो चौकीदार आते हैं
सेंट्रीज कोर्टियर्स आते हैं और वो बुक्स लेके वहाँ से चले जाते हैं। अब नवाब फिर से क्या कहता है, नवाब सेज रीचिंग फॉर सम ग्रेप्स। अब उसको कुछ ग्रेप्स खाने को मिल रहे हैं, उसको नो ग्रेप्स मिल जाते हैं खाने के लिए। कोई ऑफ़र करता, भाई कोई गुस्सा होता है तो मुझसे कुछ खिलाते पिलाते हैं, सो दैट ही और शी कुड बी काम। तो यहाँ पर उसको कुछ ग्रेप्स दे दिए जाते हैं क्योंकि वो राजा है। अब वो राजा अंगूर खाते हुए बोलता है, अनलेस आई नो द आंसर टू माई क्वेश्चंस आई कैन नीदर ईट और स्लीप। ही ईट्स द ग्रेप्स, व्हाट एम आई टू डू। अब वो एक तरफ ग्रेप्स खा भी रहा है और कह रहा है कि जब तक अनलेस अनटिल आई नो द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस आई विल नॉट स्लीप नॉर आई विल ईट। वो कहता है ना ही मैं कुछ खाऊंगा, ना ही मैं आराम करूंगा। लेकिन वो ये बात कहते हुए क्या कर रहा है, ही इज़ ईटिंग ग्रेप्स। वो ग्रेप्स खा रहा है और कहता है कि व्हाट शुड आई डू, मैं करूँ क्या, दीज क्वेश्चंस आर ट्रबलिंग मी। सो लेट्स सी क्वेश्चंस क्या हैं। अब 3 कोर्टियर्स आते हैं, 3 उसके राज दरबारी आते हैं। वो क्या बोलते हैं, जहाँ पना यू कुड आस्क राजा कृष्णा चंद्र, ही हैज़ रेपुटेशन फॉर सॉल्विंग मैनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि जहाँ पना चिल्ड्रन एक वर्ड है जो हम राजाओं के लिए यूज़ करते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं मेजेस्टी, माय लॉर्ड, तो ऐसे ही जहाँ पना होता है। तो वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, देयर इज़ अ पर्सन नेम्ड Raja Krishna Chandra who could answers all the questions because he has been very reputed for solving the problems। वो कहते हैं कि एक राजा कृष्ण चंद्र हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी फेमस है, रेपुटेशन है उनकी काफ़ी, वो उनके नेम फेम है इस चीज़ के लिए कि वो चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। नाउ 3 courtiers, ओके दिस इज़ डन। अब नवाब कहते हैं एक्सलेंट, सेंड फॉर हिम। अ सेंट्री बोज एंड रन्स ऑफ द स्टेज। अब नवाब कहता है दैट्स वेरी गुड, इट साउंड्स गुड, टेक हिम टू मी। वो कहते हैं उसको जाओ मेरे पास ले आओ। अब एक सेंट्री होता है जो उनके सामने बो करता है, झुकता है। अब राजा के सामने हम सर झुकाते हैं, तो ऐसे ही सेंट्री क्या करता है, ही बोज हिज हेड एंड ही गोज़ ऑफ द स्टेज। वहाँ के जो राजा का जो स्टेज था वहाँ पर जहाँ वो बैठा होता है वहाँ से वो चला जाता है। नवाब अब क्या कहता है, जस्ट नोइंग दैट समवन विल फाइंड द आंसर्स टू माई प्रॉब्लम्स हैज़ मेड मी फील यॉन्स। अब वो क्या कहता है, दैट नाउ नोइंग दिस दैट राजा Krishna Chandra will get me answers of my problems has made me feel too much relaxed, and ये कहते हुए वो यौन करने लगता है, जमाई लेने लगता है, यानी उसको नींद आने लगती है। यानी अब वो कहता है कि ये जान करके कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर कोई दे सकता है, तो ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये सुन करके मुझे नींद आ रही है। और अभी तक वो क्या कह रहा था, मैं ना कुछ खाऊंगा ना ही मैं कुछ पीऊँगा। सेंट्री, योर मेजेस्टी, राजा कृष्णचंद्र इज़ हियर। अब जो सेंट्री होते हैं वो राजा कृष्ण को यहाँ पर ले आते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड ही हैज़ कम बिफोर यू। कहते हैं कि ये देखिए वो आ गया है। नाउ राजा कृष्णचंद्र क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, सर झुकाते हैं, बोइंग द किंग। वो कहते हैं योर एक्सीलेंसी वांटेड टू सी मी। नवाब, यू आर अ लर्नड मैन, आई नीड द आंसर्स टू सिंपल क्वेश्चंस। अब राजा कृष्ण कहता है वहाँ पर आके कि योर एक्सलेंसी वांटेड टू सी मी। वो कहते हैं कि मजेस्टी यू वांटेड टू सी मी। नवाब कहते हैं येस यू आर अ लर्नड मैन। लर्नड मैन का मतलब होता है इंटेलिजेंट, वाइजर, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो कहते हैं
कि तुम एक बहुत ही बुद्धिमान पर्सन हो, एंड आई जस्ट नीड टू नो 2 आंसर्स ऑफ 2 क्वेश्चंस। वो कहते बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज़ फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज 2 सिंपल क्वेश्चन। वो कहते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, प्लीज़ तुम इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे दे दो। So children, let's see what are the questions and how does he solve the problems, or how does he get the answers of those two questions in the next video. Now children, quickly give me an answer of my question. अब मेरी question का भी एक आंसर जल्दी से दे दीजिए. That tell what is the name of the person who is asked to answer of 2 questions. वो कौन सा इंसान है जिससे 2 क्वेश्चंस के आंसर पूछे गए हैं. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन. यू नीड टू टेल द नेम. So children, this is my one and only question. Please answer this question after watching the video. I hope that you have enjoyed. And children, the way I have been reading out the narrations or the dialogues spoken by the characters, उसको कॉपी करने की कोशिश करिए. This is what I have been trying and you are not supporting me at all. Children, do help me by helping yourself. Saying this, children, I would say thank you and bye bye.